Good morning, students. Today on 16 July we will start our new chapter of class 7th. Chapter 5 name is power and exponent. In previous chapters we have discussed about fractions, we have discussed about multiplications, decimal numbers, addition of fraction, multiplication of fraction, division of fraction, rational numbers. These are the discussion in the previous videos. From today we are going to start our new chapter, power and exponent, that is very useful and essential in this standard also and in the next standard, next classes also. So you have to study with carefully, with presence of mind and physically and mentally. So our new topic is power and exponent. What are the power and exponent? If I write 2 by 3 multiply by 2 by 3 multiply by 2 by 3, so we can write it in the form of 2 by 3 whole cube. If I write 3 multiply 3 multiply 3 multiply 3, so we can write it 3 power 4. So these are the called power and exponent, in which here like as 2 power 5, so 2 is called base, 5 is called exponent, or we can say power. So 2 power 5, here 2 is called base and 5 is called exponent. 2 power 5 meaning is 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2. So 5 times 2 in multiplication, 2 power 5, meaning of 2 power 5 is 5 times 2 in multiplication. So 2 को write करना multiplication में 5 times, इसका meaning है, where 2 is called base and 5 is called exponent. This is in the exponent form. 2 power 5 is called exponent form and this form is called expanded form. This is called exponent form, पावर की फॉर्म में आंसर लिखना है एक्सपोनेंट फॉर्म, एंड दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में आंसर लिखना, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म. सो आफ्टर दैट हाउ वी विल रीड दिस 2 पावर 5, 2 पावर 5 या फिर 2 रेज टू पावर 5, as you wish, 2 power 5 or 2 raised to power 5. Let's start with question. First identity, a power m multiply a power n is called a power m plus n. First identity, a is a base. It means whenever two exponents are given, the base of two exponents are same, a. Here base is a and here is also base a. Base same है and multiplication के अंदर given आपको, so power same है या different है, फाइनल आंसर में base तो same रहेगा बट पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. Like as question, 3 power 5 multiply 3 power 8, we will write 3 power 5 plus 8 3 power 13. देखो 3 power 5 3 power 8, बेस सेम है दोनों का, यस और नो, यस. मल्टीप्लिकेशन में है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 5 plus 8 13. 2 power 3 मल्टीप्लाई 2 power 3, क्या आंसर आएगा, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 3 plus 3 वी विल गेट 2 power 6. इजी क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन. क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्ट, -7/3 -7/3 -7/3. You can do, देख -7/3 -7/3 -7/3, each one of same,
each bracket is same, yes or no? How many times in multiplication? How many times? 3 times. So you can write final answer minus 7 upon 3 power 3. This is the exponent form, power form, yes or no? पावर नोटेशन हो गया कि नहीं होगा? पावर की फॉर्म में आपने राइट कर दिया, फाइनल आंसर आ गया. अदरवाइज यू कैन डू माइनस 7 अपॉन 3, माइनस 7 अपॉन 3, माइनस 7 अपॉन 3. बेस सेम है, पावर क्या है? 1 1 1. क्या आंसर आएगा? माइनस 7 अपॉन 3. मल्टीप्लिकेशन में है, पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी. माइनस 7 अपॉन 3 पावर 3. सेम आंसर आएगा. समझ में गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पार्ट का ही आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं. क्वेश्चन नंबर सी पार्ट. माइनस 10 अपॉन 7, माइनस 10 अपॉन 7, माइनस 10 अपॉन 7, माइनस 10 अपॉन 7. You can see minus 10 upon 7, minus 10 upon 7, minus 10 upon 7, minus 10 upon 7. Each bracket is same. So you can write easily minus 10 upon 7. How many times in multiplication? कितनी बार है मल्टीप्लिकेशन में? 4 times. तो पावर क्या लग जाएगी? 4. Easy है. या फिर you can do plus 1 plus 1 plus 2 plus 1 plus 1. So पावर को ऐड करोगे 1 plus 1 plus 1 plus 1. 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4. सेम ही आएगा आंसर. क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन that is very useful in this classes and next classes also. Express each of the following rational number in power notation. पावर नोटेशन में ही राइट करना है, बट आपको एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन पावर नोटेशन. फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास 16 अपॉन 25. फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर है, येस और नो? यस, बिकॉज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में. सो यू हैव, दिस इज ए रैशनल नंबर. यू हैव टू डू राइट दीज रैशनल नंबर इन पावर नोटेशन. फर्स्टली प्राइम फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर पार्ट. न्यूमरेटर पार्ट इज 16. 16 के प्राइम फैक्टर करेंगे. प्राइम फैक्टर ऑफ 25, यू हैव टू डू प्राइम फैक्टर ऑफ 25. 16 is a even number, yes or no? Because unit place digit is 6. 16 is a even number. So 16 is divisible by 2. 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 1, 2 1 जा 2. We know that 25 is divisible by 5. 5 5 जा 5 1 जा. 16 ऊपर है, न्यूमरेटर पार्ट में फैक्टर क्या हुए? प्राइम फैक्टर क्या है? 2 2 2 2. How many times in 2 in multiplication? 4 times. And in the numerator 25, 5 multiply 5. So we can write 2 2 2 2. How many times in multiplication? 4 times. 5 2 times. So 2 power 5 upon में 5 power 2. ये आपका फाइनल आंसर आ गया. एक क्वेश्चन और करते हैं. Firstly, you have to do prime factor of numerator part and denominator part. Then write in the multiplication form all prime factors. Then you have to do write in powers form. C part. Minus 1 to 5 upon में 216. माइनस को एक बार भूल जाओ. 1 to 5. Prime factor of 1 to 5. We know that 1 to 5 is a odd number. It is not divisible by 2. 2 की टेबल से तो जाएगा नहीं. 3 के लिए 3 का रूल क्या है? 5 plus 2 7, 7 plus 1 8. 8 is not divisible by 3. 3 की टेबल में 8 आएगा? नो. सो लास्ट में डिजिट 5 आ रही है, 5 से ट्राई कर लेते हैं. 5 की टेबल पे 5 2 जा 10, 2 रिमेनिंग 2 5 25, 5 5 जा 25, 5 5 जा 1, 5 अपॉन 1. 216. 216 इज ए ऑड नंबर. 2 की टेबल से 1 पे. अब 1 ऊपर से उतारेंगे, डिजिट छोटी रहेगी, 6 भी उतारना पड़ेगा. 2 डिजिट एक साथ उतारेंगे तो बीच में क्या लग जाएगा? 0. 2 8 जा 16. 2 की टेबल से 2 5 जा 10, 2 4 जा 8. 2 की टेबल से 27 पे 2 की टेबल, सॉरी, अब 27 इज ए ऑड नंबर.
वी नो दैट 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 1 जा 125 ऊपर है माइनस 5 इंटू 5 इंटू 5 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई 3 सो माइनस 5 पावर 3 बिकॉज 5 कितनी बार है मल्टीप्लिकेशन में 3 टाइम्स 2 3 टाइम्स एंड 3 ऑल्सो 3 टाइम्स वी कैन राइट इजिली 5 पावर 3 2 पावर 3 पावर 3 सो वी कैन राइट 5 अपॉन 2 इंटू 3 पावर 3 पावर ऑड नंबर है तो माइनस को भी अंदर शिफ्ट कर देते हैं माइनस 5 अपॉन 6 पावर 3 ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा. सो यू हैव टू डू फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इन योर रफ नोटबुक. क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 5.1. थर्ड क्वेश्चन. Find the express each of the following power of rational number as a rational number. आपको क्या पावर्स की फॉर्म में गिवन है -3 अपॉन 5 पावर 5. रैशनल नंबर की पावर आपको गिवन है पावर फॉर्म में आपको गिवन है आपको करना है फाइंड द वैल्यू. रैशनल नंबर बनाना है आपको कैसे फाइंड करेंगे -3 अपॉन 5 पावर 5. इसका मीनिंग क्या है कि -3 अपॉन 5 मल्टीप्लिकेशन में 5 टाइम्स है बिकॉज पावर क्या है 5 तो कितनी बार है 5 टाइम्स इन ए मल्टीप्लिकेशन. सो फर्स्टली हमने 5 टाइम्स राइट कर लिया मल्टीप्लिकेशन में. पहले माइनस को सॉल्व करते हैं. माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस प्लस मल्टीप्लाई माइनस 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 इंटू माइनस प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस या ये कह सकते हैं कि -5 टाइम्स है इसलिए माइनस आ गया. 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 मल्टीप्लाई कर लेना 81 3 जा 243 बिकॉज 3 1 जा 3 3 8 जा 24 5 5 जा 25 25 5 जा 125 125 मल्टीप्लाई 5 625 625 मल्टीप्लाई 5 3125. सो इस वे से आपको थर्ड पार्ट करना है. इन दिस एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पावर. पावर नोटेशन आपको गिवन है आपको रैशनल नंबर बनाना है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में p अपॉन q की फॉर्म में आपको आंसर फाइंड करना है. कैसे करेंगे -3 अपॉन 5 पावर 5 का मीनिंग क्या है कि आपको -3 अपॉन 5 टाइम्स राइट करना है वो भी मल्टीप्लिकेशन के अंदर. मल्टीप्लिकेशन में राइट कर लिया. मल्टीप्लिकेशन को कैसे सॉल्व करना है प्रीवियस चैप्टर में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर स्टडी किया था. सो ये भी आपके लिए रैशनल नंबर ही है और इसको आपका मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है. सो हाउ डू वी सॉल्व 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 3 जा 81 81 3 जा 243 एंड इन ऑल्सो डिनोमिनेटर पार्ट फ्रैक्शन रैशनल नंबर का प्रोडक्ट हमने कैसे सीखा था प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर. तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर पार्ट को मल्टीप्लाई कर लिया डिनोमिनेटर पार्ट को मल्टीप्लाई कर लिया एंड वी गेट -243 डिवाइड बाय 3125. तो रिमेनिंग क्वेश्चन यू हैव टू डू इन योर रफ नोटबुक. सो ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट you have to do in your rough notebook. Whenever I will send you a solution, so you have to do match with your answer with solution. If there is any query, if there is any doubt, so you can consult with me. After solution, after matching your answer, you have to do these questions from solution in your fair notebook. Thank you so much.